this. So today we're going to be looking at obesity and how to logically and scientifically, how can we manage it? That is the main idea, isn't it? So obesity is a curse of the modern age. We all know that. Like we are not going out to gather food. We are not growing our own food. We are not working in the fields and we are eating a lot, and there is energy utilization, and all of this energy is going to get stored, and it is going to be stored as fat. So this is obesity is actually a big problem. And according to WHO, 39% of the adults worldwide are obese, are overweight, 14% are obese. Important here is that there is an involuntary weight gain as you age. So age itself causes obesity. So 4.4 kilograms per year, you will gain weight as you grow older, and more than 2 kilograms when you're younger. So why are we so bothered about obesity? We are bothered about it because we know scientifically that greater the obesity, greater is the insulin resistance, the blood lipid profile becomes abnormal, and there is inflammation in the body. For your information, this is what we scientists are now feeling, that all diseases of the body have some element of inflammation, whether it's osteoarthritis or backache or a heart problem or a cognition problem or an जी इंटरप्ट कर रही हूँ थोड़ा सा. नीजा जी, yeah. you should use a mixed language, Hindi English दोनों, Okay. so people can understand. All right. I'll do that as much as I can. It's a very quick, rapid कोई बात shift in my head, but I'll do it. So, obesity की वजह से we have lot of insulin resistance. Blood के लिपिड सारे abnormal हो जाते हैं, inflammation हो जाती है, which is the cause of most of the diseases of mankind. इनकी वजह से we have sugar problems, diabetes, muscle की problem, bone disorders, high blood pressure, heart diseases, chest pain, heart attack, stroke, paralysis, some cancers, and even fatty liver. अब liver जब fatty हो जाता है तो in times to come inflammation की वजह से fibrosis हो जाएगा, a disease called cirrhosis हो जाएगा, cancers हो जाएंगे, even in those people जो alcohol addicts नहीं है. So you see, that is why इसको non-alcoholic fatty liver disease बोलते हैं. Even without being addicted, they can require liver transplants. So just have a look at this कि how much weight should we have? Height के according weight कितना होना चाहिए? Now आपके average weight and height charts तो सब available हैं. Every New Year diary and online. So आप उसको देख सकते हो. But हम लोग quickly कैसे कर सकते हैं? So suppose आप 5 feet 4 inches हो, तो आप अंदाजा से ये सोचो that average weight should be 54 kilograms. अगर इसका 10% increase हो गया, like इसको आप plus 5.4 कर दो, तो वो बन जाएगा 59.4 kilograms. By definition, इसको हम लोग obese बोलते हैं, because हमने भी तो एक line draw करनी है, किसके ऊपर obese बोले, किसके ऊपर overweight बोले. So 10% more is overweight, 20% more is obese. So 5 feet 4 inches का कोई भी person हो 64.8 kilograms से ऊपर है, by definition वो person obese है. एक होती है बॉडी मास इंडेक्स. इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो बहुत सिंपल है, एवरीबॉडी शुड नो. दैट इज वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. ये आपको एक अंदाजा देता है दैट व्हाट शुड बी योर डिजायरेबल बॉडी वेट. नाउ ये वाला जो बीएमआई की वैल्यूज हैं, ये वर्ल्ड वाइड कुछ वैल्यूज थी, बट अबाउट 10-15 इयर्स बैक हमारे ही एक इंडियन ने, उन्होंने ये WHO को बोला कि एशियन कंट्रीज में these values are not okay. So in Asian countries, BMI more than 23 is considered overweight, more than 25 is considered obese. इसका रीजन ये है that in Asian countries जब BMI थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ता है तो वो डायबिटीज के ज्यादा प्रोन हो जाते हैं as compared to Western population. इसलिए हमारी ये जो लाइन बनाई है ये लोअर कर दी.
BMI का एक डिसएडवांटेज है कि आप फैट और मसल के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि ये जो 23 है ये सारा फैट की वजह से है कि इसने मसल मास बनाया एक्सरसाइज कर करके, तो ये मसल है। सो इसको ओवरकम करने के लिए WHO मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ऐसी चीजों में वेस्ट सर्कमफ्रेंस का वैल्यू यूज करते हैं। हाउ टू मेजर इट? सो आपको जो टेप लेनी है, मेजरिंग टेप, उसको फ्लैट रखना है और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मींस एक लाइन में, टेढ़ा मेढ़ा मत रखना, अपनी वेस्ट पे रखना, वेस्ट पे रखना। एंड एट अ पॉइंट जो आपके रिब केज और आपके हिप की बोन के बिल्कुल बीच में आएगा, दिस इज समवेयर नियर द अम्बलाइकस। और इसको लेना है एट अ टाइम, आपने डीप ब्रेथ लिया और पूरा ब्रेथ एक्सेल आउट किया, तो जब आपका टमी बिल्कुल अंदर हो गया, दैट पॉइंट पे आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस लेते हैं। फीमेल्स में ये 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मेल्स में 85। हम लोग फीमेल्स की ही सारी इधर बात करेंगे। एक होता है वेस्ट हिप रेशो। अब आपने वेस्ट मेजर करना तो सीख लिया, हिप का मेजरमेंट होता है राइट एट द सबसे परकी पॉइंट, सबसे वाइडेस्ट पॉइंट ऑफ द हिप को आप मेजर करोगे, और वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप आपको वेस्ट हिप रेशो यू विल गेट। नाउ आपने बहुत सुना होगा अबाउट एप्पल शेप्स एंड पेयर शेप्स। एग्जैक्टली होते क्या है? सी, एक पर्सन ऐसा है और उसके बीच वाले पार्ट में मोटापा है, दे आर फैट एट द वेस्ट। सो ये वाले लोग होते हैं एप्पल टाइप, एप्पल शेप्स। बट एक होता है कि वो सारे ठीक ठाक हैं, जब बटक्स और थाइज और लोअर एब्डोमेन वाला एरिया वहां पे बहुत मोटे होते हैं, ये होते हैं पेयर शेप्स। अब आप नोटिस करोगे कि पुराने पुराने जमानों में जब किसी आदमी को अपने लिए एक ब्राइड लानी होती थी, बहुत पुराने जमाने में, तो उनका ये हिप देखते थे। अगर हिप्स वाइड है तो उनको लगता था कि ये फर्टिलिटी अच्छी है, तो ये लेडी मेरे लिए और मेरे बच्चों को लाने के लिए ठीक है, विच इज करेक्ट, क्योंकि पेयर शेप ज्यादातर विमेन में होता है एंड इट इज कनेक्टेड टू फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन। बट एप्पल शेप जो बिल्कुल मिड ट्रंक में वेट होता है, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू विसरल फैट, फैट इन अराउंड योर इनर ऑर्गन्स, लिवर, गट, पैनक्रियाज, किडनीज के ऊपर फैट जो जमा हुआ है सारा अंदर, वो एप्पल शेप्ड पीपल में होता है। और ये ज्यादा मेन में होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन से कनेक्टेड है। बट आप एक चीज मत भूलना कि अगर विमेन एप्पल शेप्ड बनने लग जाएं तो उनका उतना ही रिस्क होगा फॉर मेटाबॉलिक डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस एज मेन। बट एनी पर्सन हु इज ओवरवेट, आप पेयर शेप्ड हो बट आप ओवरवेट हो तो आपका इक्वल रिस्क रहेगा। सो ओवरवेट इज द इशू। So naturally, we must deal with this obesity. इसको हमने ठोकना है ही। बट 3 तरीके हैं। एक है डाइट। डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक पीपल थिंक कि मैंने तो बहुत कुछ खा लिया, बट आप एक्सरसाइज कर करके अपना नॉनसेंस वाला डाइट को बर्न नहीं कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी इज डाइट। एक्सरसाइज का सिर्फ 20% रोल है। सो आप जब भी अपने मुंह में कुछ डालो, मैं ये हर बार ये सोचती हूँ, कभी कभी अलाउ करती हूँ, बट एवरी टाइम आई पुट समथिंग इन माई माउथ, आई एम थिंकिंग कि आई एम चूजिंग टू बी फैट। तो यही थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जो कर रहे हो, यू आर चूजिंग टू बी फैट। सो अगर एक चीज बहुत अच्छी है, दैट छोटा अमाउंट ऑफ वेट लॉस, आपको, आप मानो 66 किलोग्राम्स के हो, अगर आप उसका 5% भी कम कर दो, विच इज अराउंड 3.2 और वट एवर, इतना ही थोड़ा सा वेट लॉस कर लो तो आपकी पूरी मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगी। सो स्टार्ट बाय जस्ट लूजिंग 5% ऑफ योर इनिशियल वेट एंड देन गो ऑन टू मेंटेन। आपका जो भी आज वेट है उसको 10 to 20% कम करके आप मेंटेन करो, दैट इज द बेस्ट। So dietary management is of course the most important thing to do. कैसे करें? How should you do a dietary management? एक तरीका है to do जिसको हम बोलते हैं daily calorie restriction.
आप रोज जितना खाना खाते हो डेली, उसको आप थोड़ा सा कम खा लो, इतना खाने के बदले इतना खा लो। कैसे मैनेज करोगे? जो भी आप, अगर आप ये कर पाते हो तो अपने पूरे डाइट की कैलोरीज काउंट कर लो, उसमें से 1/4 कैलोरीज 24% कम कर दो, या आप 500 to 600 कैलोरीज काउंट करके कि ये कम किया, इतना कैलोरी कम हो गया 500 to 600 कैलोरीज आप अपने रोज के डाइट से हटा लो, या आप ऐसा डाइट चार्ट बनाओ जिसमें आपकी टोटल कैलोरी काउंट ही 1200 से 1500 किलो कैलोरीज है। ओके, नाउ अगर आपने 500 किलो कैलोरीज, ये बिग सी एक्चुअली किलो कैलोरीज है, 500 किलो कैलोरीज आपने एक दिन में अगर आप कम करते गए तो आप 17 डेज के अंदर अंदर 1 किलोग्राम लूज कर सकते हो। सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो सकता है इन 6 to 12 months। स्मॉलर प्लेट्स, इतना प्लेट में इतना खाना के बदले इतना खाना, सेकेंड हेल्पिंग्स नो। साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, बहुत रिसर्च हुए इन चीजों पे, व्हाट दे फाउंड, जो मैं आपके लिए ट्रांसलेट पर बहुत सिंपली करना चाह रही हूँ, इज कि डेली कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इज डिफिकल्ट टू सस्टेन, इट इज डिफिकल्ट टू डू इट ओवर लॉन्ग टर्म, लंबे दौर तक ये चलता नहीं है। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे, बट इट इज अ वे। एक और तरीका है जो कई लोग करते हैं, इज वेरी लो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, वेरी लो कैलोरी डाइट्स जो 800 किलो कैलोरीज पर डे से कम हो, ये स्टार्वेशन डाइट्स होती है। दे आर नॉट एडवाइज्ड अनलेस आपने कोई मेडिकल रीजंस के लिए बहुत रैपिडली कोई वेट लॉस करना है, अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड विद प्रॉपर न्यूट्रिशनल केयर विद अ न्यूट्रिशनिस्ट इन योर नॉलेज, तो तभी आप ये कर सकते हो। अदरवाइज नॉट एडवाइजेबल, कर भी रहे हो तो 12 हफ्ते से ज्यादा मत करो। दूसरा है कि मील रिप्लेसमेंट्स, कई लोग अपने एक मील को रिप्लेस कर देते हैं बाय अ मील रिप्लेसमेंट, बट ये फिजियोलॉजिकल नहीं है, आपकी बॉडी के लिए ये नेचुरल या नॉर्मल नहीं है। एक और तरीका होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका मतलब ये है दैट आप ऑल्टरनेटली फास्ट कर रहे हो, ऑल्टरनेटिवली फीड कर रहे हो, फास्ट फीड। जब आप फीड कर रहे हो, खा रहे हो, तो उस टाइम ग्लूकोज एनर्जी के लिए यूज हो जाएगा। जब आप फास्ट करते हो तो आपकी एनर्जी आती है फ्रॉम फैट्स जो ब्रेक डाउन होके कीटोन्स बना देते हैं, और ये कीटोन्स हैं जिनकी 1 ग्राम से एनर्जी अगर 9 किलो कैलोरीज मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से 4 या 5 मिल रही है, देखो डबल एनर्जी मिली विद कीटोन बर्निंग। और कीटोन्स एक ट्रिगर है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से वेट भी कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक स्ट्रेस कम होता है, एजिंग कम होता है, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, हार्ट डिजीज, एवरीथिंग कम होते हैं। ये मेटाबॉलिक स्विच जो आप ग्लूकोज फ्यूल से आप कीटोन फ्यूल में बदलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है चाबी टू वेट लॉस एंड टू ह्यूज बेनिफिट्स, हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। ये आप किस तरीकों से कर सकते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग? एक है ऑल्टरनेट डे फास्ट, जिस दिन आपने फास्ट किया उस दिन कोई कैलोरीज नहीं ली। मॉडिफाइड में जिस दिन आप फास्ट कर रहे हो उस दिन आप 500 किलो कैलोरीज ले सकते हो, और ये आप ऐसे करते हो कि आपने 4 दिन एक हफ्ते में यू हैव फेड, खाया, 3 दिन फास्ट किया, या 5 दिन खाया, 2 दिन फास्ट किया। प्रॉब्लम इसके ये है कि हंगर इज अनकंट्रोलेबल, एंड आप करते जाओ ये सोचोगे ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक नहीं होता, हंगर रहता है। सो एक और तरीका है टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग। ये सारे जो तरीके हैं ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के ही हैं, बट टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग भी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका है जिसमें एक दिन के अंदर आप कुछ टाइम खाते हो, कुछ टाइम नहीं खाते। सो आप 16 घंटे आप फास्ट कर लो और 8 घंटे आप खा लो। वो वाला 16 घंटे फास्ट वाला कौन सा होना चाहिए? दैट शुड बी इन द इवनिंग एंड नाइट। So your eating, feeding time is in the morning. अगर आप 6 बजे तक अपना सारा खाना पीना खा लो, या इवन बेटर है कि आप 3 बजे तक खा लो, तो यू विल फाइंड दैट यू लूज लॉट। खा रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
कब खा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट नहीं मिस करना, क्योंकि आपका फीड टाइम मॉर्निंग आवर्स है। सो डोंट मिस योर ब्रेकफास्ट, बट आप इवनिंग में फास्ट पे चले जाओ एंड सो जाओ रात को, 12 घंटे रात के वैसे ही निकल गए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग डे एनिमल्स हैं, हम लोग नाइट एनिमल्स नहीं हैं। हम लोग चूहे नहीं हैं जो रात को अपने बिल से निकलते खाते हैं। वी आर डे एनिमल्स। हम रात को, हमारा पूरा फिजियोलॉजी ऐसी है कि वो डे और नाइट में सेपरेटेड है। सो हमारी फिजियोलॉजी, हमारे हॉर्मोन्स, हमारा इंटेस्टाइन के एंजाइम्स, सिक्रीशंस, डाइजेशंस, ब्रेन का रिदम, सोना जागना, ये सब डे नाइट साइकिल्स में है। तो आप अपना खाना पीना भी और फास्ट करना डे और नाइट में डिवाइड कर दो। कई लोग तो मेनी रिलीजन्स एंड एंशिएंट कल्चर्स में 2 मील अ डे भी करते थे और 1 मील अ डे भी करते हैं। इस सारा कुछ के बारे में ज्यादा जानने के लिए इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी का ऑफिशियल चैनल है डिजिटल एजुकेशन इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी। ये यूट्यूब पे है, तो आप इसको प्लीज जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। इट विल एनकरेज अस। So now I want to talk about different types of diets. देखो, एक हुई वेस्टर्न डाइट, वेरी बैड, लॉट ऑफ शुगर्स, लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स वो होते हैं कि आपने एक ही ऑयल में आपने उसको हाई टेम्परेचर्स पे मोर देन 6 आवर्स आपने हीट किया, फिर वो टॉक्सिक बन जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न फूड्स आर डन इन दिस वे, एंड हमारे समोसे। सो फैटी लिवर इसका कॉज है। पेलियो डाइट्स, अब पेलियो डाइट्स पेलियोलिथिक डाइट से आया है ये वर्ड, विच इज फ्रॉम दैट टाइम व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स, होमो सेपियंस, हम लोग वी वर हंटर्स गैदरर्स, हम बाहर जाके जो हमें हंट किया, गैदर किया, हमने खाया, ये पेलियो डाइट है। बट ये एक्सपेंसिव है और वेजिटेरियंस के लिए ये कुछ भी नहीं है। इसमें आप नोटिस करो वो क्या खाएंगे, क्योंकि पेलियो डाइट्स में आप जो चीज ग्रो कर रहे हो वो पेलियो डाइट में आती ही नहीं। सो यू कांट टेक लेग्यूम्स, यू कांट टेक ग्रेन्स, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है, प्रोटीन बहुत हाई है। अब वो एथलीट्स जिनको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से हाई कार्ब्स चाहिए बिकॉज दे आर बर्निंग एनर्जी, वो बेचारे क्या करेंगे? देन देयर आर सम इन विच देयर इज अ हाई प्रोटीन। अब हाई प्रोटीन, कई लोग सोचते हैं प्रोटीन तो बहुत बढ़िया चीज है, हाई प्रोटीन तो, बट जस्ट लुक, जितना हाई प्रोटीन आप इम्बैलेंस में रखोगे, रीनल एंड हार्ट डिजीज के साइड इफेक्ट्स हैं। आप हाई प्रोटीन खा रहे हो और आप बोल रहे हो यार मैंने तो शुगर खाया ही नहीं। सो लो कार्बोहाइड्रेट्स, बट उससे आपको शुगर्स में, डायबिटीज में बेनिफिट नहीं आएगा। दिस इज आवर रिसर्च। सो देन यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज अ न्यूकासल डाइट। ये दिस इज द सेम थिंग एज स्टारवेशन डाइट। इसके बारे हम बात कर चुके कि अनलेस इट इज रियली रियली एसेंशियल फॉर सम मेडिकल रीजंस आप मत करें। एक है ओकिनावा डाइट। दिस इज एन आइलैंड जहां पे नेचुरली वो सिर्फ 2 मील्स खाते हैं, लास्ट मील इज इन द आफ्टरनून। इनके डिजीजेस आर सो लिटिल एंड दे हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ। फिर है मेडिटेरेनियन डाइट्स। आप देखो उसमें लो फैट है एंड ऑलिव ऑयल है जिसमें हाई मुफा होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सी फूड, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स। दिस इज एक्सपेंसिव। सो हमारा ये लोकल कल्चर नहीं है, हमारे कंट्री में तो ऑलिव ऑयल उगता भी नहीं है। सो इट इज एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड बट वेदर इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट, ये वाला रिसर्च अभी बहुत क्लियर नहीं है। तो आप ओवरबोर्ड मत जाइएगा फॉर मेडिटेरेनियन डाइट्स। नो स्पेशल डाइट और फैट इज सुपीरियर टू इंटरमिटेंट फास्टिंग। बेस्ट इज टू ईट सीजनल, लोकल। अपने लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करो एंड टेक ऑर्गेनिक। And the more you, because everything you get an apple from California, आपको क्या लगता है उसको नाइट्रस से ब्लास्ट नहीं किया हुआ to keep that freshness? So have local, fresh, colorful. One word about religious diets, like our Navratras, Karwa Chauth, Ramadan, which they do for 1 month. Now all these religious diets, they are not good for weight loss, because the weight loss even after Ramadan returns after 1 month when they come back to normal.
And just look, all these religious diets are against the circadian rhythm of day and night, activity and sleep. So it is against our physiology, and they should not be used as a weight loss program. Few words about the glycemic index and load. The glycemic index is the number which is associated with 50 grams of glucose and its effect on the blood glucose. It's a carbohydrate. Now, if you take 100 as equivalent, you can have low, medium, or high glycemic index foods. Just remember that the glycemic index is one thing, but you want to know how much of glycemic index wale foods you are taking. So you want to know the glycemic load. What is the effect of 50 grams of a standard portion of food on the blood glucose? So you find out the carbohydrates in that, multiplied by the glycemic index, divide by 100. This will give you an idea not only of the quality, the GI, but also of the quantity of that glycemic load. So what do we want to do? We want to decrease the glycemic load. How can you do that? By eating foods from the group. You can check it online, all low glycemic index foods. You can eat more of those. If you're eating high glycemic index foods, eat less of those and decrease the total carbohydrates that you eat and eat complex carbohydrates. Why should you eat complex carbohydrates? It's because when they pass through the intestine, वो जब intestine से निकलते हैं तो उनमें बहुत time लगता है to digest it. So the sugar जो release होता है वो slowly over a long period of time release होता है. Spikes नहीं होते. So आपके sugar controls abnormal नहीं होते. Generally speaking, अगर आप carbohydrate, protein और fat के ratios देखो, so carbohydrate is 55% of total calories, protein is 30 and fat is 15. But अगर आपने anti-obesity diet लेनी है तो अपने carbohydrate को थोड़ा decrease कर दो और fat को थोड़ा सा increase कर दो, because fat produces satiety. आपको fullness का एक sensation देता है. आप fat free diet लोगे, आप इतना nonsense खा जाओगे that it will increase your total calorie count. So some amount of fat is required. In fact, 15 grams अगर आप invisible fat ले रहे हो from your food, which is inside your food, 20 grams of visible fat अगर लोगे तो you are satisfied and you're full and content. Among the fats, polyunsaturated and monounsaturated are good. Saturated fats, vanaspatis, those things जो solidify हो जाती हैं at room temperatures, they are not good. Trans fats जो आप बार बार उसी oil को heat करके करते हो, they are not good. So second part जिससे हम लोग अपनी obesity को tackle कर सकते हैं is exercise. एक्सरसाइज 4 तरीकों की होती है. एक होती है एरोबिक, जिसमें आप ऑक्सीजन यूज करके आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वो इतनी स्ट्रेनुअस नहीं है, आप लंबे लंबे टाइम को उसको सस्टेन कर सकते हो, इसलिए उसको कार्डियो एंड्योरेंस भी बोलते हैं. लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, डांसिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, गार्डनिंग, ये सारी एरोबिक एक्सरसाइज हैं. अगर आप इससे थोड़ी सी ज्यादा हेवियर एक्सरसाइज करो तो आप जितना ब्रीथ कर रहे हो, आपका ऑक्सीजन उस एक्सरसाइज को सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो आपकी पूरी मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाती है. तो आपकी एक्सरसाइज के लिए आप फैट्स बर्न करने शुरू कर दोगे, आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जो आपके मसल्स को पेन करता है. सो द पेन हैवी एक्सरसाइज में इसकी वजह से है. थोड़ी देर के बाद आप करते जाओ, आप परसिस्टेंटली अपना ये प्रोग्राम एनोरेबिक एक्सरसाइज का करते रहो, तो थोड़ी देर के बाद बॉडी इतना यूज्ड हो जाती कि वो लैक्टिक एसिड को वॉश ऑफ कर देती है. द मिनट आपका वो मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया कि आप उस लेवल की एक्सरसाइज को टॉलरेट कर पा रहे हो, तभी आपका स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस, मसल मास बिल्डअप हो जाता है. सो आपने अगर मसल मास बिल्डअप करना है, साथ साथ वेट लॉस भी करना है, तो आपको रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ या एनोरेबिक एक्सरसाइजेस को ऐड करना पड़ेगा. और इनमें से बिग 4 ये स्क्वाट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसेस हैं जो आपके फिजिकल ट्रेनर्स आपको बता सकते हैं. So out of the 4 types of exercise, aerobic, anaerobic,
थर्ड इज बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ये दोनों विल प्रिवेंट यू फ्रॉम फॉल्स. इनफैक्ट माई मम when she used to see a stone आगे पड़ा हुआ थोड़े डिस्टेंस पे, तो उसको देख के ही वो गिर जाती थी. जस्ट लुकिंग एट दैट स्टोन इन फ्रंट ऑफ हर. इतना स्टेबिलिटी नहीं थी. आपने अपने आप को स्टेबल और फ्लेक्सिबल, स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाना है. सो ये 4 एक्सरसाइजेस सब इंपॉर्टेंट है. सबको मिक्स करके करो, सिर्फ एक पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, बिकॉज अगर आप बोर हो गए तो आप कंटिन्यू नहीं करोगे. बट स्टार्ट विद एरोबिक्स, क्योंकि उससे आपके हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. योगा इज एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस. ग्रुप्स में करो, अकेले करोगे तो आप नहीं करोगे. वार्म अप एंड कूल डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन बिफोर योगा. रिस्क ऑफ इंजरी इज देयर इन ऑल वर्कआउट्स, इवन विद योगा. इनफैक्ट आपके ऑर्थोपेडिशियन फ्रेंड्स यही बोल देंगे कि हमारे पास मैक्सिमम स्पोर्ट्स इंजरीज आफ्टर योगा आती है. सो मेरा रिकमेंडेशन ये है दैट आप ट्रेनर की सुपरविजन में अगर करें, अपने पर्टिकुलर नीड्स के हिसाब से करें. जी आपके बैक में प्रॉब्लम है, आपका एक वर्टेब्रा बैक का आगे आ गया है, तो फिर आप बैक बेंडिंग नहीं कर सकते, तो आपके ट्रेनर्स और फिजियोथेरेपिस्ट ही बता पाएंगे. हर एक बैक प्रॉब्लम के लिए बैक बेंडिंग या फॉरवर्ड बेंडिंग ये नहीं करना, वो नहीं करना, डज नॉट अप्लाई. सो recommendations is that exercise in any form, duration and frequency का benefit है. आप moderate exercise अगर कर रहे हो, जैसे brisk walking कर रहे हो, तो 30 minutes a day, आपके एक हफ्ते में 150 minutes हो गए, 5 days in a week. अगर आप vigorous कर रहे हो तो या आप ये करो, या आप vigorous कर रहे हो तो 20 minutes a day for 3 days in a week, या आप इसका moderate और विगरस दोनों को मिक्स एंड मैच करके आप दोनों कर सकते हो. ये हो गई एरोबिक. बट लाइक आई सेड, आपने रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस ऐड करनी ही है. सो प्लस रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस फॉर 2 days एटलीस्ट इन अ वीक. आप पीडोमीटर्स यूज करो या जो मर्जी करो, बट दिस शुड बी द बेसिक प्रोग्राम. और आपके प्रोग्राम में स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी तो वैसे ही होनी चाहिए. Like I said, diet alone is not good, but it is better than exercise alone. Exercise alone is not good, so do both diet and exercise. The last thing is behavior modifications. आप diet और exercise कर तो रहे हो, पर जब तक आपका एक inner change नहीं होगा, you don't change your attitude or your thinking or your behavior connected to food. I'm talking of connected to food, not connected to life as such. So binge patterns are not good. Drastic calorie reduction बहुत अच्छी बात नहीं है. अपने आसपास ऐसी चीजें रखो जिससे आपको स्टिमुलस मिले to continue to be healthy. अपना psychological stress आप decrease करने की कोशिश करो by yoga, music, meditation, arts, hypnotherapy. Important, sleep well. Because you must remember that it is during the sleep that your whole body recover भी करता है, repair भी करता है और heal भी करता है mentally and physically. And drink water. Water. How much of water? So 1 liter for every 20 kilograms of your weight. So if you are 50 kilograms of weight, then 2.5 liters, about 2.5 to 3 liters of water is required. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ब्रेन में जो थर्स्ट एंड हंगर, भूख वाला सेंटर है, ये बहुत पास पास है. तो जब आपको लगता है कि वो हंगर हुआ, आपको भूख लगी, वो एक्चुअली थर्स्ट हो सकता है. तो उस टाइम पे आप पानी पियो, आपका हंगर चला जाएगा. सो डोंट थिंक कि आपका हर एक स्टिमुलस हंगर 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 है. हम लोग थर्स्ट को रिकॉग्नाइज करना भूल गए. फाइनली, डाइट अलोन, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, फॉर वट एवर रीजन एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो डाइट अलोन इज बेटर इज देन एक्सरसाइज, बट डू बोथ. आइदर डिक्रीज योर टोटल कैलोरीज एक दिन का, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, बट ईट लोकल, सीजनल, कलरफुल. आप गर्मी के सीजन में गोभी खाना चाहोगे तो वो तो कहीं से और से आई होगी ना. सो ईट जो आपके लोकल सीजन है. छोटी छोटी डाइट की चेंजेस से आपका वेट लॉस हो जाएगा.
कोई भी एक्सरसाइज इज गुड, थोड़ी ज्यादा whichever, बट सारी करो, चारों करो. अपना प्लेजर you take from your workouts, exercise से, from family, friends, pleasurable activities and hobbies, because इससे आपके happy hormones बढ़ेंगे. But अगर आपको लगता है कि आप अपने लेवल पे नहीं कर पा रहे, तो डाइट के लिए न्यूट्रिशनिस्ट, एक्सरसाइज के लिए फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल ट्रेनर्स एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशंस के लिए साइकोलॉजिस्ट एंड योर ओन डॉक्टर, इन सब से हेल्प लेने में शाय मत फील करना. सो थैंक यू ऑल. Thank you, Neerja ma'am. We all are overstruck with your lecture, and so we are so happy. We have and thank you very much for adding new dimensions to our knowledge. Thank you so much, ma'am. Welcome. And Dr. Aarti,